Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundhar Sulakshana and I will be teaching you SPCC. So students, today we are here to see Standard 12th SPCC chapter number 1 from the part 2. As you all know, we are seeing the part 2 issues of share. So already we have seen few parts of this chapter. So today we are here to see the part 6 of the chapter. So students, now let us move on with the further portion of the video. So before starting the today's portion, let us have a short discussion regarding the portion that we have seen on the previous video. So previously we have seen about the renunciations of share. After that we have seen what is the duties of a company secretary. Then we have seen the meaning of share allotment, and after that we have seen share on calls in a very detailed manner. So let us have a short revision of this portion. So what is renunciation of a share? Renunciation of a share means many a time the company issues the right shares to the existing shareholder. So whenever the existing shareholders gets the renunciation of the share, which means the allocation of the right share, at that time they have the portion of renunciation. If they don't want to keep the share with them and they want to transfer that share to someone else, then that is considered as renunciation of share. Means allotting their shares to someone else is considered as renunciation. So here agreedly the shareholder, existing shareholders, tells to the company that he does not want this right share and he wanted this right share to be allotted to a specified person. So here a form is being filled by the company. That form is considered as the letter of renunciation. So after filling the letter of renunciation, the particular shares are allotted to the specified person which is given by the original owner preference. So in this manner the renunciation of the share is being done. So renunciation can be done in two way of procedure. First of all, the original existing shareholder has to write up or fill the letter of renunciation to the company and ask them to pass that share to the XYZ person's name. After that, on the second portion, the XYZ person has to request the company that he has been allotted the right share from the original owner. So he requests the company to give the shares to him. In this manner, the two process has to be done up. After that, if you are seeing, the renunciation can be done in a particular time only. The company gives the particular time to the shareholder for filling up the form of the renunciation and giving the allotment to the another person. If the person fills the form of renunciation in that particular time, then the company allowed the person on the listing of the members. Before the listing of the member, on the time of the listing of the member, the names will be swiped up and the member's name will be preferred on the list of members. So in this manner we have seen the renunciation of share. After that we have seen what is the share allotment meaning. You know that what is share allotment. Share allotment means when a company initially issues the public share, at that time it prepares a prospectus. After preparing the prospectus, this prospectus is being laid up for an advertisement for inviting the investors. As the investors sees the invitation, they apply for the share. As the application is being seen up, the application is being now taken back by the company, and after verifying, few shares are allotted to the share applicant according to the norms of the company. So in this manner, the share which is allotted to the applicant is considered as share allotment. So it has the various procedure. Even we have seen the procedure in a very detailed manner in the previous portion also. So now if you are seeing, as per this share allotment, after this share allotment, the listing of the shares are being done on the stock exchange. But here if you are seeing, the importance of the share allotment is mostly performed by the secretary, which means the company secretary. So what are the duties of the company secretary? First of all, you know that he or she has to open an escrow bank account by the resolution passed by the board of directors. After that, the prospectus has to be prepared up. As the prospectus is being prepared, it has to be sanctioned by the stock exchange, and then the agreement has to be done by the stock exchange by the company secretary. She has to do or he has to do all this work. The listing agreement of the stock exchange, recognized stock exchange, has to be done. After that, the agreement with the intermediates, which means the lead manager, broker, bankers to issue. This all person has to be prepared by
an agreement on the behalf of the company. After that, the share applications must be invited and the applications must be taken back. The subscription must be taken. So as the subscription is taken, and then the classification of the investor must be done according to the company's norm. Once the classification is done, then a board meeting has to be arranged for the board of directors so that the allotment can be done. With the help of the registered board of directors, the allotment is done. Once the allotment is done, the allotment money has to be asked up by the share allotted to the particular share allotted shareholders. So as the shareholders has to be informed by email or SMS by the company secretary that they have been allotted that portion, and then the share allotment statement is been prepared by the registrar with the help of the company secretary. Even the person, those who have not allotted the share, they also must be informed about this portion. And after that, if you are seeing, after all this allotment and this portion, the payment portion, the registrar must be paid, the underwriting procedure if is done, then the commission must be paid. In this manner, all the payment must be cleared by the company secretary, and finally the listing of the share must be done in the stock exchange. These are the duties of the mandatory duties of the company secretary. Then we have seen share on calls. So what is share on call? Share on call means whenever we are issuing the share allotment, so allotment is done. After that, you know that the full amount is not being taken up by the company on one stage. It is being collected on the installment. Slowly few amount is collected. So the second portion after the application amount and the allotment, the share on call, particular amount is called for the share. For example, if you have seen, if the amount of a particular share is 100 rupees, if the fully paid share is not there, 100 rupees fully is not collected by the company, it has only collected 30 rupees on the application and 20 rupees on the allotment, means still 50 rupees is remaining. From that 50 rupees as an installment of 20 rupees can be asked up for the share on calls, and that must be paid by the shareholder. So here the importance of the shareholders and the responsibility of the shareholder is to pay the share called by the company on the time period of the calling. So up till this we have seen in a very detailed manner. So now let us move on with the today's portion in a very detailed manner in the further portion from the PDF in the further video. Students, let us start us with the provision of the Company Act regarding share call. So last time we have completed up to the share call. So what are the provision of the Company Act about the share call that we are going to see today? So first point is that should be a provision in the article of the company to make share call on share. अगर उन्हें कॉल शेयर पे कॉल करना है तो उसके लिए ऑलरेडी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का होता है एओए, उसमें उनको ये प्रोविजन को मेंशन अप पहले ही करवाना होगा, तभी ये चीज हो सकता है, वरना उनको फुल्ली पेड कैपिटल में ही काम करना पड़ेगा. सेकेंड, कॉल ऑन द सेम क्लास ऑफ शेयर मस्ट बी यूनिफॉर्म विदाउट एनी बेसिस. सो सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर्स है, सारे ऐसे सेम क्लास के जो शेयर्स होते हैं उसका जो कॉल होगा वो यूनिफॉर्म होना चाहिए. जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर का 10 यानी 10 ही रुपीज होना चाहिए, किसी का 12 और किसी से 10, ऐसा नहीं होना चाहिए. कॉमन यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसमें कोई बायसेस यानी कोई पार्शियलिटी होना नहीं चाहिए. अ रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिफोर मेकिंग अ कॉल. कभी भी कॉल करने के पहले, कॉल यानी ये वाला कॉल नहीं, पैसे मंगवाने के पहले कभी भी एक रिजोल्यूशन पास अप करना चाहिए, ताकि मीटिंग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसका एक मीटिंग होना चाहिए, वहां पे रिजोल्यूशन पास होना चाहिए. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मर्जी होगी उस हिसाब से ही कॉल करनी चाहिए. डिमांड नोटिस ऑफ कॉल शेयर मस्ट इंडिकेट द अमाउंट ऑफ कॉल, टाइम लिमिट, प्लेस ऑफ पेमेंट ऑफ कॉल, डेट एक्सेट्रा. तो डिमांड नोटिस इशू किया जाता है कि आपका जो इतना शेयर अलॉट किया गया, आपके शेयर अलॉटमेंट में इतना कॉल ऑफ शेयर किया जा रहा है, तो उस डिमांड नोटिस के अंदर कितना अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज का कॉल किया गया तो 20 रुपीज का अमाउंट एक शेयर के लिए, टाइम लिमिट 4 दिन का, प्लेस ऑफ पेमेंट कौन से बैंक से उनको पेमेंट करना है या कहाँ से उनको पेमेंट करना है, दैट यू नो दैट. तो प्लेस ऑफ पेमेंट और कॉल का जो पेमेंट है उसका डेट क्या होगा वो भी बताया जाता है. Share transfer and voting right of the member can be suspended till the call money is paid. Even शेयर का जो ट्रांसफर किया जाता है और जो वोटिंग राइट होता है वो जब तक कॉल मनी पे नहीं किया जाता है तब तक सस्पेंड किया जाता है, यानी तब तक कॉल ट्रांसफर और शेयर ट्रांसफर या वोटिंग राइट उनको नहीं मिलता है जब तक वो कॉल मनी पे नहीं करते तब तक. Amount of the call on share received is deposited with the bank by opening a share call account. So अभी तक शेयर अलॉटमेंट और शेयर एप्लीकेशन में यू नो दैट escrow अकाउंट पे चलता था. अब जब
कॉल ऑन शेयर किया जाता है तब शेयर कॉल अकाउंट करके एक अकाउंट बैंक में ओपन किया जाता है, उसके अंदर ये पैसे डाले जाते। दैट शुड बी एन इंटरवल ऑफ एटलीस्ट 1 month बिटवीन द पेमेंट ऑफ 2 इंस्टॉलमेंट। जैसा इससे 2 से 3 इंस्टॉलमेंट का शेयर कॉलिंग किया जाता है। तो एक इंस्टॉलमेंट से लेके दूसरे इंस्टॉलमेंट के बीच में 1 महीने का गैप तो होना चाहिए, एटलीस्ट बोला गया, ठीक है। यानी मिनिमम 1 month का होना चाहिए, मैक्सिमम जितना आप दे सकते हो उतना आप इंटरवल दे सकते हो। द कंपनी कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल अमाउंट नॉट रिसीव्ड इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, हाउएवर द डायरेक्टर में वेव सच इंटरेस्ट पार्शियली और फुली। सो कंपनी अगर आपको जैसे टाइम पीरियड दिया गया है, ये 3 दिन 15 दिन ऐसे टाइम दिया जाता है कॉल ऑन शेयर के लिए, बट अगर उसने उस टाइम पीरियड के अंदर आपने पेमेंट नहीं किया तो डायरेक्टर्स को आपके ऊपर इंटरेस्ट लेने का हक हो जाता है। जैसे कि आप अगर पेनाल्टी, अगर टाइम पे आप पे नहीं करते हो तो आपका उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, पेनाल्टी लिया जाता है। बट अगर डायरेक्टर चाहे तो वेव यानी वो आपको ऐसे इंटरेस्ट को फुल्ली या पार्टली माफ भी कर सकते हैं। सो इस एक टाइप का प्रोविजन जो है ऑलरेडी कॉल ऑन शेयर के ऊपर कंपनी को करवाना चाहिए, तभी वो कर सकता है। सो नाउ द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग कॉल। सो डायरेक्टली ऐसे ही हम कॉल तो कर नहीं सकते, तो उसका एक प्रोसीजर होगा, तो कैसे हमें उसको कॉल को करना है, लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। The company can make call on shares by observing statutory provisions and provisions of articles. For this purpose, the company is required to follow the certain procedures as under. तो एज आई सेड कंपनी डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता। सो कॉल ऑन शेयर करने के लिए ऑलरेडी लीगली जो प्रोविजंस और प्रोविजन ऑफ आर्टिकल जो उनके कंपनी के एक्ट पे देखा गया है उस हिसाब से ही वो कर सकता है, और सर्टेनली उनको उस प्रोसीजर को फॉलो अप भी करना पड़ता है। इसीलिए उसके पहले नीचे दिए गए चीज़ों को उनको ध्यान देना पड़ता है, फिर वो चीज़ शेयर ऑन कॉल करवा सकता है। फर्स्ट इज रिजोल्यूशन रिगार्डिंग शेयर कॉल। A resolution for making call is required to be passed in the meeting of board of directors. The resolution should contain information about amount of call per share and the last date of payment. As I said, सबसे पहले एक resolution उनको पास करवाना पड़ता है, जिसके लिए एक बोर्ड मीटिंग बिठाया जाता है। बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि कितने का कॉल अमाउंट करना है। जैसे शेयर अलॉटमेंट में फॉर एग्जांपल हम 100 रुपीज़ ही देखते हैं, क्योंकि वो एक राउंड फिगर होता है। सपोज 100 वाला हमने मैक्स से सीखा है, इसलिए हम सपोज 100 ही लेते। सो 100 रुपीज़ की अगर हम बात करते, सो 100 रुपीज़ में हमने अलॉटमेंट में जो है 20 रुपीज़ पे किया, एप्लीकेशन में 30 रुपीज़ पे किया, यानी 50 रुपीज़ हो गया। स्टिल 50 रुपीज़ बाकी है, तो 50 रुपीज़ में से कितना अमाउंट उनको एज अ कॉल मंगवाना है, फॉर एग्जाम्पल 20 मंगवाना है। कितना ड्यू डेट है उसका, यानी 10 डेज या 15 डेज, लास्ट पेमेंट का डेट क्या है वो उनको डिसाइड करके बताना पड़ेगा। यानी रिजोल्यूशन में ये सारी चीज़ें डिसाइड किया जाता है, फिर एक रिजोल्यूशन बनाया जाता है। क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। The register of members and the register of share transfer is kept closed for some days for the preparation of list of members and for sending notice of call to shareholder. A notice should be given in newspaper 7 days before the closures of register of member and the register of share transfer. ठीक है। सो एज जैसे ही रिजोल्यूशन पास हो जाता है तुरंत ही रजिस्टर्ड मेंबर जो होते हैं, इवन जो शेयर ट्रांसफर करवाने के लिए रजिस्टर करते हैं, उसका कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। जैसे मैंने शेयर किया, मैंने शेयर लिया, मुझे अपना नहीं रखना, मैं किसी को ट्रांसफर करूं, तो ये प्रोसीजर जो है 7 दिन तक बंद कर दिया जाता है। जैसे मुझे शेयर अमाउंट ओपन करवाना है, जैसे कि मैं शेयर ऑन कॉल करवा रही हूँ, सो कॉल ऑन शेयर करवाने के टाइम पे उसके 7 दिन पहले, जैसे कि मीटिंग होने के पहले ही मुझे ये इन्फॉर्म कर देना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज दे देना पड़ेगा कि हम जो है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और रजिस्टर ऑफ शेयर ट्रांसफर को क्लोज कर रहे हैं 7 दिन के बाद, क्योंकि 7 दिन के बाद हम कॉल ऑन शेयर करने वाले हैं। तो कॉल ऑन शेयर खत्म नहीं होता तब तक ये प्रोसीजर बंद रखा जाएगा। इस तरीके का एक एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में दिया जाना चाहिए। थर्ड इज प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कॉल ऑन शेयर। So a call list is prepared after closing the register of member, which contains the following details: name and address of the member, number of shares, amount of call in advance if any, amount payable by the member, due by which the payment has to be made by। उसके बाद एक लिस्ट बनाया जाता है कॉल ऑन शेयर के ऊपर, यानी कि जो हम कॉल लिस्ट करने वाले, जो शेयर होल्डर से हम पैसे मंगा रहे, यूनिफॉर्मली सबसे ही मंगाना है, बट उनके शेयर के हिसाब से अमाउंट डिफर हो जाता है, इसलिए
कॉल लिस्ट बनाया जाता है जो क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर के बाद किया जाता है। उसमें पर्टिकुलर डिटेल्स को हमें इंक्लूड करना है, जिसमें फर्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ द मेंबर। सो नेम और एड्रेस जो होते हैं मेंबर, उनका नंबर और एड्रेस ऐड कर लेना है, नेम ऐड करना है। उसके बाद उनका कितना नंबर्स ऑफ शेयर दिया गया, फॉर एग्जांपल 20, तो 20 नंबर ऑफ शेयर, तो अमाउंट ऑफ 12, तो 20 रुपीज मंगाना है 20 शेयर्स का, तो कितना हुआ। तो उसके अलावा एडवांस में अगर कोई कॉल मंगवाना है तो किस तरीके से, अगर एडवांस शेयर भी होता है, कॉल ऑन एडवांस शेयर भी किया जाता है, तो अगर वो मंगवाना है तो उसका डिटेल। उसके बाद कितना अमाउंट पेएबल बाय द मेंबर, उस पर्टिकुलर मेंबर से कितना अमाउंट पेएबल है वो मेंशन करना है। फिर लास्ट डेट कौन सा है पे करने का वो मेंशन किया जाता है। इन शॉर्ट वो जो कॉल ऑन शेयर है उसका पूरा नेसेसरी डिटेल वो शेयर होल्डर को दे देना चाहिए। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टू द बैंक। Once the call list is ready, secretary sends a copy of call list to the banker of the company. It is also intimated to the bank to collect the call money on behalf of the company and credit the amount to share call account. तो सबसे पहले जैसे ही कॉल लिस्ट प्रिपेयर होता है उसके बाद यू नो दैट शेयर अकाउंट का एक अकाउंट, कॉल शेयर कॉल का एक अकाउंट बना है, इसीलिए एक बैंक को अपॉइंट कर दिया जाता है। सो सेक्रेटरी क्या करती है, कंपनी का जो बैंक होता है या बैंकर होता है, जो बैंक का कंपनी का एक बैंकर माना जाता है, यानी कंपनी का पूरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो बैंक हैंडल करती है, उनको एक लिस्ट भेज देता है, जो कॉल लिस्ट बना है उसका एक कॉपी भेज दिया जाता है और उधर बैंक का काम शुरू हो जाता है। सो बैंक को कंपनी के बिहाफ में वो सारे पैसे कलेक्ट करने हैं और शेयर कॉल अकाउंट में उसको ट्रांसफर या क्रेडिट करना होता है। सेंडिंग नोटिस ऑफ कॉल, अ लेटर इन्फॉर्मिंग द अमाउंट ऑफ कॉल टू बी पेड इज सेंट टू एवरी मेंबर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट of the share. This letter is called notice for call. The notice must reach the member 14 days before the prescribed date of the payment of call money. So एक नोटिस प्रिपेयर किया जाता है जिसमें ऊपर हमने लिखा लिस्ट ऑफ शेयर में जो चीजें मेंशन की उस हिसाब से एक नोटिस प्रिपेयर किया जाता है। ये एक ऐसा लेटर है जिसमें इन्फॉर्म किया जाता है कि पर्टिकुलर मेंबर को कितना पेमेंट करना और कब तक करना है। सो रजिस्टर पोस्ट के थ्रू ये चीज भेजा जाता है और ये जो लेटर है इसे नोटिस फॉर कॉल भी बोला जाता है। बट जो ड्यू डेट होता है उस ड्यू डेट के 14 दिन पहले, 14 डेज पहले ये लेटर उनको पहुंच जाना चाहिए। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ कॉल ऑन शेयर. Shareholders pays the amount of call to the bank within 14 days of the receipt of payment notice of share call. Bank credits the call money received by the account of call on the share and retains the pay-in slip and returns the notice and the receipt to the shareholder. Bank sends pay-in slip to the कंपनी। सो यहाँ पे शेयर होल्डर जो भी पैसा बैंक में पे करता है 14 दिन के अंदर उसका रिसिप्ट जो है नोटिस ऑफ शेयर का उनको मिल जाता है और बैंक क्या करता है, जो भी कॉल मनी उसने रिसीव किया ऑन द बिहाफ ऑफ द कॉल शेयर उसको पे इन स्लिप में रिटर्न करके उस नोटिस को और रिसिप्ट शेयर होल्डर को दे के बैंक जो है पे इन स्लिप जो है कंपनी को भेज देता है। पे इन स्लिप मतलब तुम्हें पता है हम जो पे करते हैं उसके साथ में जो स्लिप हम अटैच करते हैं तो उस पे इन स्लिप को उनको दे देता और रिसिप्ट कस्टमर को रिटर्न कर देता और पे इन स्लिप सारे कलेक्ट करके जो है कंपनी को भेज दिया जाता है। रिकॉर्डिंग कॉल मनी रिसीव्ड इन कॉल लिस्ट. The secretary records the list call received in the register of member on the basis of pay-in slip and prepares the list of call not received. This list is then presented to the board of director for the further action. Once जैसे पे इन स्लिप बैंक के थ्रू सेक्रेटरी के हाथ में आता है तो सेक्रेटरी सबसे पहले जो कॉल लिस्ट बनाया है उसके अंदर सारे डिटेल को भरते। किसके थ्रू? तो पे इन स्लिप। क्यों? क्योंकि पे इन स्लिप में पर्टिकुलर नाम, उसका बैंक अकाउंट और कितना अमाउंट पे किया ये बता दिया जाता है। ऑलरेडी हमने कॉल लिस्ट बना के रखा है जिसमें बाकी सारे डिटेल्स है। सो एक एक इंडिविजुअल का पे स्लिप लेके और एक एक इंडिविजुअल के सामने वो सारी डिटेल्स भर दिया जाता है। उसके बाद एक लिस्ट बनाया जाता है जिसमें से रिसीव्ड पे अमाउंट और जितने ने नहीं भरा नॉट रिसीव्ड का कॉल का जो लिस्ट है वो भी बनता है और जो नॉट रिसीव्ड कॉल ऑन शेयर है उस लोगों का एक लिस्ट बना के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने प्रेजेंट किया जाता है ताकि उनके ऊपर फर्दर एक्शन लिया जा सके। सो यहाँ खत्म होता है प्रोसीजर ऑफ द शेयर ऑन कॉल। सो आफ्टर दैट ड्यूटीज ऑफ द सेक्रेटरी रिगार्डिंग शेयर कॉल। तो शेयर कॉल करते वक्त सेक्रेटरी का
या सेक्रेटरी का ड्यूटी क्या है, इस चीज के बारे में यहाँ बताया गया। फर्स्ट वन इज वेरीफाइंग प्रोविजन इन द आर्टिकल ऑफ द कंपनी रिगार्डिंग मेकिंग कॉल। सबसे पहले आर्टिकल, जो कंपनी का आर्टिकल है और उसका प्रोविजन है, उसको अच्छे से जांच लेना, वेरीफाई करना, उसके बाद ही कॉल करने के लिए सोचना या उसका कॉल करने के बारे में डिसाइड करना। टू गेट द रिजोल्यूशन फॉर मेकिंग कॉल पास्ड इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाके रिजोल्यूशन पास करवाना ताकि कॉल मेकिंग किया जा सके इन अ पर्टिकुलर मैनर। Issuing notice in newspaper 7 days before the closure of register of member and the register of share transfer before making call। इसके बाद न्यूज़पेपर में 7 दिन पहले, जैसे 7 दिन बाद अगर क्लोजर ऑफ रजिस्टर करना है तो उसके 7 दिन पहले इशू करवा देना एक नोटिस के 7 दिन के बाद रजिस्टर ऑफ मेंबर और रजिस्टर ऑफ शेयर ट्रांसफर जो है बंद किया जाएगा कॉल मेकिंग के वजह से। नंबर 4, प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ द मेंबर्स those whose calls are in the arrears and sending notice to each such holder। उसके बाद लिस्ट ऑफ मेंबर जिनका पेमेंट रिसीव किया है उस पेमेंट का लिस्ट बनाना और नॉट रिसीव्ड का एक लिस्ट बनाना, और जिनका नॉट रिसीव्ड हुआ, जिन्होंने अभी तक भरा नहीं, उनको फिर से एक नोटिस भेजना कि उनका जो कॉल है अरियर में यानी अभी भी रुका हुआ है, पे नहीं हुआ है, तो जल्द से जल्द पे किया जाए, उसका एक नोटिस उनको पे किया जाता है यानी सेंड किया जाता है। नंबर 5, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट फॉर कलेक्टिंग अमाउंट ऑफ कॉल ऑन शेयर। उसके बाद बैंक अकाउंट ओपन करवाना ताकि कॉल ऑन शेयर के लिए एक अकाउंट पर्टिकुलरली रखा जाए, इसीलिए। मेकिंग अ नोट ऑफ कॉल मनी रिसीव्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर बेस्ड ऑन द पे इन स्लिप and preparing the list of member from whom call money is not received and presenting the same before the board of director। उसके बाद जैसे हमने देखा कॉल मनी को रिसीव करना, अकाउंट तो ओपन कर दिया, कॉल मनी को रिसीव किया, रिसीव करने के बाद पे इन स्लिप जो बैंक सेक्रेटरी को होल्ड इन करता है, उस पे इन स्लिप के थ्रू लिस्ट ऑफ मेंबर प्रिपेयर करना है, कितने कितना पे किया, किसने कितना पे नहीं किया। अभी भी जिसने पे नहीं किया है उसका जो डिटेल्स है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंचा देना, ये एक सेक्रेटरी का काम माना जाता है। नेक्स्ट इट इज शेयर फॉरफीचर्स। सो शेयर फॉरफीचर का मतलब शेयर ऑन विच कॉल मनी इज नॉट रिसीव्ड आर फॉरफिटेड बाय द कंपनी। जो भी शेयर जो कॉल मनी मंगाया गया है वो कॉल मनी अभी भी पे नहीं किया गया हो, ऐसे जितने शेयर हो उस शेयर को कंपनी जब जब्त कर लेती है उसे फॉरफिचिंग बोला जाता है, यानी वापिस खींच लेना, दैट इज कंसिडर्ड एज फॉरफिचिंग। अमाउंट फॉरफिचर ऑन शेयर्स ऑन विच कॉल मनी नॉट रिसीव्ड इज नोन एज शेयर फॉरफिचर। सो अमाउंट यानी जो शेयर वापस खींच लिया गया, जो पैसे नहीं भरे उस पैसे के लिए शेयर्स को जैसे वापस खींच लिया जाता है उसको शेयर फॉरफिचिंग यानी शेयर फॉरफीचर्स माना जाता है। इन शॉर्ट शेयर फॉरफीचर्स मीन्स व्हेनेवर अ शेयर इज बीन रिकलेक्टेड or been snatched back for not paying the share call money is considered as share forfeitures. So in this manner we have seen the meaning. Let us see the definition of the share forfeitures. So share forfeiture is the process by which the director of a company cancels the membership of shareholder and remove the name of shareholder from the list of member on non-receipt of call money as asked by the company in accordance with the statutory procedure laid down in the article of company. Share forfeiture is a disciplinary action by the director against non-payment article of the company must authorized for forfeitures of share. सो शेयर फॉरफीचर की अगर हम बात करते हैं, ये एक ऐसा प्रोसीजर माना जाता है जहाँ पे डायरेक्टर ऑफ जो कंपनी होते हैं वो शेयर होल्डर की मेंबरशिप कैंसिल कर देते हैं, शेयर होल्डर का नाम रिमूव कर देते हैं लिस्ट ऑफ मेंबर में से, क्योंकि उनका जो कॉल मनी मंगवाया गया था वो उन्होंने अभी तक नहीं पे किया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने गाड़ी खरीदा, ईएमआई हमें पे करना पड़ता है, अगर हम ईएमआई नहीं पे करते कंटिन्यूअसली 1 2 3 नोटिस के बाद तो क्या करेगा, दुकान वाला अपना गाड़ी वापस खींच लेगा। सो इसी तरीके से शेयर होल्डर्स के भी शेयर वापस फॉरफिचिंग कर दिया जाता है। फिर यही जो शेयर है कंपनी के अकॉर्डेंस में जो स्टैट्यूटरी प्रोसीजर होता है, आर्टिकल ऑफ कंपनी में ऑलरेडी कंपनी ने ये सारी चीजें मेंशन की, उस हिसाब से डिसिप्लिनरी एक्शन यानी एक पर्टिकुलर डिसिप्लिनरी एक्शन के हिसाब से शेयर फॉरफिचिंग किया जाता है। व्हाट इज डिसिप्लिन, आपको जो चीज बोला जाता है उसको परफेक्ट टाइमिंग में करना, दैट इज अ डिसिप्लिन। तो शेयर होल्डर ने शेयर खरीदा है, ये जानते हुए खरीदा है कि उसको कॉल ऑन मनी करना पड़ेगा, बट अगर फिर भी वो नहीं करता है तो डायरेक्टर नॉन पेमेंट के सामने डिसिप्लिनरी एक्शंस में शेयर फॉरफिचिंग करते हैं। सो आर्टिकल ऑफ कंपनी में ऑलरेडी ऑथराइजेशन देना चाहिए फॉरफिचर ऑफ शेयर्स, तो ही फॉरफिचिंग
फॉरफिचिंग ऑफ शेयर किया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली हर एक कंपनी में पहले से ही फॉरफिचिंग का ऑथराइजेशन जो है लीगली एओए में और एमओए में बता दिया जाता है। नेक्स्ट इट इज प्रोसीजर ऑफ शेयर forfeitures. So what is the procedure? Let us see the procedure of share forfeiting, but we will see it on the next video. So until this, today we are going to keep up. I hope you all have understood the portion in a very well manner. So let us move on with a short summarization of the topic that we have seen today. Friends, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So today we have seen the provision of share on call and or call on share, we can say that. After that we have seen what is the procedure of call on share and what are the duties of a company secretary on share on calls, and after that what is share forfeiting, its meaning and definition we have seen in a very detailed manner. So let us have a short summarization or a revision of the portion that we have seen today. So provision of share on call or call on share की अगर हम बात करते, सबसे पहले आर्टिकल ऑफ जो एसोसिएशन है यानी एओए में ये प्रोविजन होना चाहिए कि कॉल ऑन शेयर करवाया जा सकता है कंपनी से, तो ही कंपनी शेयर ऑन कॉल करवा सकता है। सेकेंड, एक बार प्रोविजन रेफर करने के बाद सेकेंड रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है बोर्ड ऑफ मीटिंग के थ्रू, और उसके थ्रू ही हम कॉल ऑन शेयर करवा सकते हैं। व्हाट इज द लास्ट डेट एंड व्हाट इज द मनी, वो डिसाइड करवाना पड़ता है मीटिंग में, देन ओनली वी कैन डू दैट। एटलीस्ट इंस्टॉलमेंट के बीच में जो है 2 मंथ के 1 मंथ का एटलीस्ट का टाइम होना चाहिए, और प्रोबेबली उससे ज्यादा हो तो बेटर है, ये माना जाता है। आफ्टर दैट एक कॉल नोटिस बनाया जाता है जिसमें एप्लीकेंट को बताया जाता है कि आपको कितना अमाउंट किस तरीके से पे करना है। सो वो प्रोविजन के हिसाब से बनाना पड़ता है, उसी के बाद ही शेयर कॉल किया जा सकता है। अगर कोई अरियर है तो अरियर को इन्फॉर्म किया जाता है, यानी कोई भर नहीं रहा तो उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि पर्टिकुलरली लास्ट डेट के अंदर आपको भरना है, और अगर आप नहीं भरोगे तो उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ऐसा उनको एक वार्निंग भी देना पड़ता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो उस इंटरेस्ट को वो माफ भी कर सकते हैं पेनाल्टी के रूप में जो चार्ज किया गया। ये था प्रोविजन। इसके बाद हमने देखा कि द प्रोसीजर ऑफ द शेयर कॉल ऑन शेयर। सो शेयर्स के ऊपर जो कॉल ऑन शेयर किया जाता है उसका प्रोसीजर क्या है ये देखा। सबसे पहले एज आई सेड कि हमें सबसे पहले रेजोल्यूशन पास अप करवाना पड़ता है, तो बोर्ड ऑफ मीटिंग को बिठा के कॉल ऑन शेयर करने के पहले सबसे पहले रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। कंपनी एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से कॉल ऑन शेयर कर सकते हैं नहीं, ये डिसाइड करने के बाद एक रेजोल्यूशन पास करवा के हमें जो है उस रेजोल्यूशन में लास्ट डेट क्या है, अमाउंट क्या डिसाइड किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू, ये रखना पड़ता है। उसके बाद सेकेंड जो है एक बैंक ओपन करना पड़ता है, बैंक अकाउंट, शेयर कॉल अकाउंट करके एक पर्टिकुलर सिर्फ शेयर कॉल के लिए एक अकाउंट पर्टिकुलर कंपनी के बैंक में ओपन किया जाता है। वंस द बैंक अकाउंट इज ओपन, उसके बाद हमें कॉल लिस्ट बनाना पड़ता है। कॉल लिस्ट में सेक्रेटरी को कॉल लिस्ट बनाना पड़ता है जिसके अंदर एप्लीकेशन में जितने लोगों का शेयर इन्वेस्टर्स का नाम, शेयर होल्डर का नाम, उनका अमाउंट, उनको कितना शेयर्स अलॉट किया गया था, उसका कितना अमाउंट होता है और कब तक पे करना, और लास्ट डेट क्या है और कौन से बैंक में और कहाँ कौन सी जगह पे करना, ये सारी डिटेल्स उस नोटिस में प्रिपेयर किया जाता है। वंस द कॉल नोटिस इज प्रिपेयर्ड, उस कॉल नोटिस को बैंकर के पास एक कॉपी करके भेज दिया जाता है। अब काम बैंक का शुरू होता है। बैंक क्या करता है, जैसे ही कंपनी ने उसको जो लिस्ट दिया उसके हिसाब से जो पैसे आते हैं उसको कलेक्ट करता है। ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी वो उसको कलेक्ट करेगा, और फिर जैसे सारे कलेक्ट हो जाते हैं तो फिर वो कंपनी के जो शेयर कॉल अकाउंट है उसमें क्रेडिट कर देगा। अब बैंक में जब ये चीजें कलेक्ट किया जाता है उस टाइम पे पे इन स्लिप से जो पैसे भरे जाते हैं पे इन स्लिप रख लिया जाता है और रिसिप्ट जो है कस्टमर को यानी शेयर होल्डर को दे दिया जाता है। ये सारे पे इन स्लिप को कलेक्ट करके इस कलेक्शन को जो है पे इन स्लिप का जो है हमारे पोर्शन यानी कंपनी सेक्रेटरी के पास दे दिया जाता है। वंस द कंपनी सेक्रेटरी इज गेटिंग द पे इन स्लिप, वो क्या करती है, कॉल लिस्ट जो उसके पास रेडी पड़ा है उसके अंदर ये पे इन स्लिप की हेल्प से सारा डिटेल भर देती है। सारा डिटेल भरने के बाद यहाँ देखा जाता है कि कितने लोगों ने पे किया है और कितने लोगों ने नहीं पे किया। अब जितने लोगों ने नहीं पे किया है उसका एक लिस्ट बनता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद में पास में उसको फ्यूचर में दिया जाता है ताकि फर्दर एक्शन उसका लिया जा सकता है। अब इस प्रोसीजर में हमने ये देखा कि सबसे पहले बैंक अकाउंट खुलता है, उसके बाद जो है सबसे पहले रेजोल्यूशन होता है, फिर बैंक अकाउंट खुलता है, उसके बाद स्टॉप किया जाता है पर्टिकुलर शेयर ट्रांसफर और शेयर मेंबरशिप की एक्टिविटीज को 7 दिन के पहले इन्फॉर्म करके, यानी 7 दिन के बाद ये बंद होगा ऐसा इन्फॉर्म करके उसको सस्पेंड कर दिया जाता है जब तक कॉल मनी का प्रोसीजर नहीं हो जाता। उसके बाद कॉल लिस्ट बनता है, कॉल लिस्ट का एक कॉपी बैंक में जाता है, बैंक उसको लेता है, फिर मनी कलेक्ट करता है, उस मनी के हिसाब से जो पे इन कलेक्ट हुआ है उस पे इन स्लिप को कंपनी
को देता है, कंपनी उसका कॉल लिस्ट बनाता है, उसमें से बाइफ्रिकेट किया जाता है कितने ने पे किया, कितने ने नहीं पे किया। इस हिसाब से जो बाइफ्रिकेट किया गया है उसमें से जितने नहीं पे किया वो कहीं ना कहीं जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पहुंचाया जा सकता है, ताकि फ्यूचर में उनके रिलेटेड कोई एक्शन फर्दरली लिया जा सके। तो यहाँ पे खत्म होता है प्रोसीजर ऑफ शेयर ऑन कॉल। आफ्टर दैट व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। सो कंपनी सेक्रेटरी को सबसे पहले आर्टिकल को देखना है, वेरीफाई करना है कि उनकी कंपनी एक्ट में आर्टिकल क्या है। वेरीफाई करने के बाद एक रिजोल्यूशन पास करवाना है। रिजोल्यूशन पास करने के बाद उनको जो है एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना है उस रिजोल्यूशन के हिसाब से। जैसे ही रिजोल्यूशन के हिसाब से बैंक अकाउंट ओपन होता है, सबसे पहले उनको सस्पेंड करवाना है रजिस्टर ऑफ मेंबर और रजिस्टर ऑफ शेयर ट्रांसफर का। उसके लिए उनको 7 दिन पहले न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देना पड़ेगा। 7 दिन के पहले न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देने के बाद ये बोला जाएगा कि जब तक शेयर ऑन कॉल नहीं होता है 7 दिन के बाद से ये प्रोसीजर बंद हो जाएगा, और उसके बाद शेयर ऑन कॉल होने के बाद ही ये प्रोसीजर शुरू होगा। उस पर्टिकुलर टाइम तक इसको ब्लॉक किया जाएगा। ऐसे 7 दिन पहले एडवांस में इन्फॉर्म कर दिया जाता है। उसके बाद एक कॉल नोटिस बनाया जाता है जिसे हम निबान नोटिस या नोटिस भी बोलते हैं। इस नोटिस में मेंशन किया जाता है पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स को कितना भरना है और किस हिसाब से। हर एक के घर पे रजिस्टर पोस्ट के थ्रू इसको पहुंचाना और लोगों को ड्यू डेट देना, और इवन ड्यू डेट अगर 10 तारीख का है तो उसके 14 दिन पहले ये नोटिस उनके घर तक पहुंच जाने, इसका काम जो है कंपनी सेक्रेटरी का होता है। इवन उसका प्रीवियसली कोई अरियर देखा गया, जैसे अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया या फर्स्ट कॉल हो गया उसका मनी नहीं पे किया, तो ऐसा कुछ हुआ है जो अरियर पास्ट का देखा गया, तो उसके लिए भी वापस एक बार उनको इन्फॉर्म करना, नोटिस देना कि आपको ये अरियर क्लियर करना है। इस तरीके से ये काम करना है। वंस जैसे ही बैंक में लिस्ट बनता है उसको पॉसिबल करके पहुंचाते हुए, और उसके बाद वो जो लिस्ट में से पेइंग स्लिप आता है वो पेइंग स्लिप को लाके रजिस्टर करवाना अपने कॉल लिस्ट के अंदर। फिर जो रिमेनिंग अरियर वाले हैं उसका लिस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देना और लिस्ट ऑफ मेंबर को वहां पे वापिस एक बार शेड्यूल्ड करवाना। ये कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है। तो इस तरीके से जो है पोर्शन देखा जाता है। नेक्स्ट हमने देखा शेयर फॉरफिटिंग का। शेयर फॉरफिटिंग की अगर हम बात करते हैं, वी हैव सीन दैट अगर कॉल ऑन मनी किया जाता है और अगर कोई जानबूझ के कॉल ऑन मनी नहीं पे करता है तो 1 या 2 बार के बाद कंपनी क्या करता है, 1 या 2 नोटिस के बाद उस शेयर को जब्त कर देता है, उसको मेंबरशिप में से रिमूव कर देता है, शेयर होल्डर्स में से हटा देता है और उस शेयर को कंपनी वापिस अपने पास खींच लेता है। उसे कहीं ना कहीं शेयर फॉरफिटिंग बोला जाता है। इस तरीके से हमने मीनिंग और उसका डेफिनेशन डिटेल में देखा। सो प्रोसीजर ऑफ शेयर फॉरफिटिंग हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टुडेज पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर। Rather than that, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.